السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ میں آج اتوار ہے، آخری اتوار ہے اس مہینے کا، تو میں آپ کو اکتوبر کے حوالے سے اپنا علمی اندازہ شیئر کروں گا۔ باقی حتمی ذات میرے رب کی، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے پنجتن پاک کے صدقے اگر کوئی نیگیٹو بات ہو تو اس کو ختم کر دے، اور جو بھی پازیٹیو چیزیں وہ لوگوں کی کر دے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتا ہوں۔ سب سے پہلے برج حمل ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے لیے جو اکتوبر کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس کے شروع کے 17-18 دن ایسے ہوں گے کہ آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام، کوئی رکا ہوا کام ہو سکتا ہے۔ حکومتی اداروں سے اگر متعلقہ اگر کوئی چیز آپ کی اٹکی ہوئی ہے تو وہ مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی قرض لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کی پاسبلٹی بن رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو گورنمنٹ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں یا حکومتی حلقوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ اکتوبر کا جو ہے شروع کے 18-19 دن بہت اچھے جا سکتے ہیں، مگر اس کے بعد تھوڑے سے پرابلم ہے جس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ مطلب اب احتیاط کس طرح کی کرنی ہے؟ دیکھیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل رسک نہیں لینا، کوئی ایڈونچر نہیں کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو بعد میں پرابلم کا باعث بنے۔ اور یہ جو اکتوبر کے شروع کے دن ہوں گے، ان میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مالی لحاظ سے بھی اچھا رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بیرون ملک سفر کا امکان بنے۔ اور تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے دشمنوں پہ اور اپنے حاسدوں پہ نظر رکھیے گا، وہ کچھ نہ کچھ پھل جڑی چھوڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے کر کچھ نہیں پائیں گے۔ اور لگتا یہ ہے کہ آپ کی مصروفیت سوشل کاموں میں اور فلاحی کاموں میں رہے گی، اور پلس گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، اور فیملی کے ساتھ کچھ وقت زیادہ اسپینڈ کریں گے آپ۔ دوسرا برج ہے ہمارا برج ثور، ٹورس والوں کے لیے کہوں گا کہ اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے امکان ہے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے، کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتہ، کوئی بیاہ یعنی شادی یا منگنی، اس قسم کی کوئی جو ہے سرگرمی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی احتیاط برتیے گا، اس کا بلیک اینڈ وائٹ چیزیں دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد پارٹنرشپ بنائیے گا۔ اگر آپ ٹورس عورت ہیں یا ٹورس مرد ہیں تو شریک حیات دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات میں گرم جوشی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہم آہنگی اور خوشحالی سے انشاءاللہ تعالی لائف کا اس پاتھ پہ چلے گی۔ اور یہ جو تھوڑا اکتوبر کے لاسٹ 5-6 ڈیز ہوں تو یہاں پہ ذرا اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں آدمی کو اسپیکولیشن میں نہیں گھسنا چاہیے، سٹا، جوا، یہ چیزیں ان سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے اسلامی لحاظ سے، مگر اپنا پیسہ ان قسم کی اسکیموں میں مت ڈالیے گا۔ اور وہ ٹورس لوگ جن کے اگر کوئی رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہیں علمی لحاظ سے یا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، تو ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر اور خوشخبری آ سکتی ہے۔ باقی فائنینشیل وے میں انشاءاللہ تعالی اچھا جائے گا، اور پلس آپ مائٹ بی پاسبل، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اپنے گھر کے لیے سامان آرائش و زیبائش یعنی لگژری آئٹم کی خرید کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، تیسرا برج ہے ہمارا برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے میں کہوں گا تھوڑا سا آپ کو اکتوبر کے مہینے میں ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، فائنینشلی کچھ ملے جلے رزلٹ آئیں گے، مکس رزلٹ، اور کوئی ایگریمنٹ، کوئی کانٹیکٹ، کوئی چیز جس میں اگر آپ بینک سے ریلیٹڈ ہیں تو سائن کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو اس کو ایک دفعہ کے بجائے 2 دفعہ پڑھ لیجئے اور چیک کر لیجئے، اور اس وقت کسی کے اوپر تحریر کے معاملے میں اعتبار مت کیجیے گا۔ اور تھوڑا سا آپ کا کام کے حوالے سے اوور اسٹریس ہو سکتے ہیں، سفر کرنا چاہیں گے مگر ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس میں معمولی سا التوا آ جائے، جو آگے تھوڑے عرصے کے بعد پھر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ کو اپنے جو جذباتی معاملات ہیں ان میں بہت ٹیک کیئر کرنی ہے، ورنہ خواہ مخواہ کا کسی کے ساتھ آپ کا
कोई झगड़ा, कोई चपकलिश ये पैदा हो सकती है। और गैर कानूनी सरगर्मियों से 10 कोस दूर रहिएगा, वरना ये वो दौर होता है जहाँ पे आदमी फंस सकता है। इसके बाद चौथा बुर्ज है हमारा बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए फाइनेंशियली अब ये थोड़ा सा रिलीव आपको मिल सकता है। सेहत के एतबार से जो अगर कोई डिटोरिएशन या कोई कमी हो रही थी सेहत में, तो वो भी बेहतर हो सकती है। और अगर आप किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं या वहाँ पे काम करते हैं, तो उसमें आपके लिए अच्छा वक्त है। आपके सीनियर आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे का बाइस बनेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ये वो दौर होता है कि इंसान अपने बड़ों की खिदमत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने लगता है, ये अल्लाह ताला के खेल है। उसके बाद ये आपके लिए अगर आप तालीमी हवाले से स्टूडेंट हैं और कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई डिग्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं दाखिला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुक्म अल्लाह कामयाबी हो सकती है। और आपके कुछ पुराने दोस्तों से और अजीज़ों से आपकी इस महीने में मुलाकात का इम्कान बनेगा। और अगर आप मुलाजमत पेश आएँ तो हो सकता है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है कि अक्टूबर में के महीने में कोई तनख्वाह बढ़ने, कोई इंक्रीमेंट, कोई ऐसी चीज़ की बुनियाद बन सकती है, यानी आपको अपने सुपीरियर से एप्रिसिएशन मिलेगा। इसके बाद हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि माली लिहाज से थोड़ी सी आपके साथ बेटरमेंट शुरू हो जाएगी। और अगर आप किसी लोन, किसी कर्ज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कर दीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा भी हो सकता है आपको ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ। और अगर आप बाय द वे माइनिंग के कामों में यानी कान कनी के कामों में, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कोई आपको नई ऑफ़र या नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रा सोच विचार के बाद एक्सेप्ट कीजिएगा। और थोड़ा सा आपका अपनी शरीक हयात यानी मर्द औरत दोनों के लिए बता रहा हूँ, ज़रा सा उनके साथ ताल्लुकात में कुछ सर्द मोहरी आ सकती है वक्ती तौर पर। सब्र व तहम्मुल से काम लीजिएगा। और जो अननेसेसरी, जिसे हम कहते हैं ना इर्रेलेवेंट चीज़ें, गैर ज़रूरी, उनसे दूर रहिएगा। और किसी गैर के फड्डे में अपनी टांग फंसाने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बक़िया बुरूज के हवाले से आपको बताता हूँ। एक दफ़ा हुमायूं महबूब फिर आपको खुशामदीद कहता है। और ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, मेरे नाम से फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी कनेक्टिविटी है सोशल मीडिया में, वो सब फ्रॉड है, जाली है। और मेरे नाम से लोगों ने फेक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोग भी, अल्लाह के हुक्म से, बुराई बुराई होती है, झूठ झूठ होता है, गुनाह गुनाह होता है, इंसान को सज़ा मिलती है। थोड़ी सी अल्लाह रस्सी ढीली कर देता है, लेकिन इन सब का भी वक्त आएगा। तो उस पर अप्रोच ना कीजिएगा। सोशल मीडिया से मैं कोसों दूर हूँ। जब भी करूँगा, बनाऊँगा, सबसे पहले अपने शो में बताऊँगा। अब छठा बुर्ज है हमारा विर्गो, जिसको हम उर्दू में सुमला कहते हैं। मैं आपको ये कहूँगा, थोड़ा सा आपके ज़हनी दबाव में कमी आने लगेगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया काम मिल सकता है आपको। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम आए जिसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो आपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने, यानी सरमायाकारी करें। मतलब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम करें जिसमें आप समझते हैं 5 लाख लगा दूंगा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, आप उसमें 2 लाख लगाएं, 3 लाख को अपने पास होल्ड करें। यानी ये वो वक्त है जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। और घरेलू माहौल अच्छा रहेगा आपका। और इंशाअल्लाह ताला आपका, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो अचानक कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, कोई आपको फ़ायदा भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है अक्टूबर के महीने में जिसकी वजह से आपको एक लॉन्ग रन तक उसका बेनिफिट मिले। और बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात बहुत बढ़ेंगे, रिश्तेदारों से, औलाद की तरफ से सुकून मिल सकता है। या अगर औलाद कोई बीमारी का शिकार थी तो अब उसकी सेहत में बेहतरी बहुक्म अल्लाह इंशाअल्लाह आने लगेगी। इसके बाद जी हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए
वैसे ओवरऑल इतना बुरा नहीं है, मगर अब थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। और मसलन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसमें नहीं, लेकिन अपनी जॉब के हवाले से कोई रिस्क मत लीजिएगा। एक होता है ना पंगा लेना, एक खामखा का कि यार गो के सही भी हो, लेकिन इस वक्त आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखना है, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं। घरेलू मामलात बेहतर रहेंगे। अगर नौकरी तब्दील करने का या जॉब को चेंज करने का मूड बने तो मैं आपको मशवरा दूंगा फ़िलहाल 2 महीने के लिए उसको इल्तवा में डाल दीजिए और उस पे ना कीजिए, और कोई नया कारोबार में सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस वक्त। और औलाद की तरफ से इंशाल्लाह आपको खुशी मिलेगी, और कुछ पुरानी चीज़ें या पुराना कर्ज या पुरानी कोई कमिटमेंट उसके पूरे होने का इम्कान बनेगा। बाकी मेरा रब बेहतर करने वाला है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई आगे के लिए यानी अब से 2 महीने बाद 3 महीने बाद सफ़र के लिए प्लानिंग करें या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, और रब्बुल इज़्ज़त जो है इसमें आपको कामयाबी अता कर दें। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। देखें जी, गैर ज़रूरी सोचें आपको थोड़ा सा तंग करेंगी। आपको कभी कभी ये भी ख्याल आएगा कि यार मैं ये काम कर रहा था उसमें कमी आ गई है, मैं इस चीज़ में था अब उसके अंदर थोड़ी सी डिटोरिएशन हो गई है, मेरी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी अब वो नहीं रही। उस पर घबराएं नहीं, ये वक्ती तौर पे थोड़े अरसे के लिए रहेगा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें देगा। हाँ, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और मुझे ये लगता है काम या खामखा का एक जिसे कहते हैं ना खामखा की पख साथ लग जाना, वो चीज़ बन सकती है। बच्चों के हवाले से थोड़ी सी आपकी मेंटली इंगेजमेंट रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगी। हाँ, अगर आप किसी पुरानी बीमारी या क्रॉनिक डिजीज़ जो है उनका कोई सही मुआलिज नहीं मिल रहा तो इस दौर में उसका अच्छा मुआलिज मिलने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। और जो स्कॉर्पियो ख़वातीन हैं उनको मैं ये कहूँगा ड्राइविंग करते वक्त ख़ास तौर पे आपने एहतियात का दामन जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखना है, वरना कोई छोटी मोटी तकलीफ़ अल्लाह ना करे आपको पहुंच सकती है। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। इसके बाद हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कौस, जिसको अंग्रेज़ी में सेजिटेरियस कहते हैं। इनके लिए मैं कहूँगा ये महीना आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, खाने पीने का शौक़ बढ़ सकता है, सोशल लाइफ में इजाफ़ा हो सकता है, और आपकी माली जो पोजीशन है उसमें बेहतरी आ सकती है। थोड़ा सा मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा आपका, ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली, नया काम, नई चीज़ शुरू हो सकती है, और आपको अपने इर्द गिर्द में चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। अगर आप सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं उसका भी इम्कान है। अगर आप कोई इनकम के हवाले से कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए शुरुआत तो ज़रूर कर लें, लेकिन उसको पाए तकमील तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वैसे ओवरऑल आपकी ज़िंदगी बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े बेहतर रहेगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसको अंग्रेज़ी में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आपके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ज़िंदगी में सुकून आएगा और थोड़ा सा आपके इर्द गिर्द के माहौल में सख्ती हो सकती है। अब इर्द गिर्द के माहौल से मुराद मेरी होती है प्रोफेशनल लाइफ, दफ्तरी मामलात, या उसके आपके ख़र्चे बढ़ जाएं और इनकम का खाना थोड़ा सा गिर जाए तो घबराइएगा नहीं। घर की तज़य्युन व आराइश के लिए आपको अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको इसमें सबसे अच्छा जब ज़रा सा टाइम टफ हो ना तो इंसान अपने आप को मज़हब में और ज़्यादा इन्वॉल्व कर ले या खिदमत खल्क़ में, तो वो चीज़ें टल जाती हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि अफ़ाम व तफ़हीम से आपके मसाइल हल हो जाएं, उसमें परेशानी प्रॉब्लम ना आए या झगड़े तक नौबत ना पहुँचे, और कोशिश कीजिएगा कि उसको कोर्ट तक लिटिगेशन तक ना लेके जाएं। प्रॉपर्टी के हवाले से एहतियात करिएगा। किसी को ये वो दौर होता है जब इंसान किसी पे अंधा भरोसा करके उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, तो मैं ये ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा, वरना अल्लाह ना करे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, यानी कोई धोखा मिल सकता है आपको। ख़वातीन हज़रात, चलें एक
वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद बखिया दो बुरूज के हवाले से आपको बता खुश आमदेद। और ये देखें आपके टेलीविज़न पे टिकर चल रहा है, सोशल मीडिया पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, जो भी है फेक है, फ्रॉड है, उस पर ना अप्रोच करें। प्रोग्राम के आखिर में अपना नंबर बताता हूँ कॉन्टैक्ट का। 11वां बुर्ज है हमारा बुर्ज दल, जिसको इंग्लिश में हम एक्वेरियस कहते हैं। मैं आपको ये कहूँगा घरेलू माहौल तो आपका अच्छा रहेगा, मगर आप अपने दफ्तरी मामलात, अपने प्रोफेशनल लाइफ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। कोई ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जिससे बाद में आपके लिए मसाइल पैदा हों। और इस वक्त ये अब मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ बुर्ज दल वालों को इस साल में कि आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे अपने दांतों का, मुंह का, या एलर्जी का, या एक ये भी हो सकता है आपके टांगों में तकलीफ़ की शिकायत होने लगे। इन चीज़ों का सेहत के मामले में अब नेग्लिजेंसी मत कीजिएगा, लापरवाही, वरना फिर अल्लाह ना करे कोई चीज़ बढ़ के बन जाती है। जब इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, तो उससे पहले कि वो चीज़ थोड़े से नासूर बने, उसको वहीं कंट्रोल कर लें। और अपनी आमदनी और ख़र्चों में तवाज़ुन रखने की कोशिश कीजिएगा। ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा, या किसी को अगर आप ये सोच के पैसे देंगे कि ये मेरे महीना ये देता रहेगा और मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ना, गलत साबित हो सकता है आपका ये इरादा और ये तवक्को। और थोड़ा सा आपके ये इम्कान है कि सोशल लाइफ में इजाफा हो सकता है। अगर आप औरत हैं दल या मर्द हैं दल, तो आप आउटिंग पे, मियाँ बीवी बच्चे, कहीं होटलिंग आउटिंग इस पे जा सकते हैं, सैर व सयाहत पे। और थोड़ा सा आप अपने अंदर एनर्जी का लेवल लो फील करेंगे, यानी एक जो पहले एनर्जी का लेवल यहाँ होता था वो थोड़ा सा गिरा हुआ महसूस होगा, मगर थोड़े अरसे के लिए उसमें आपने एहतियात करनी है। और अपनी सेहत के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ख्याल रखें। सफ़र का इरादा बन सकता है, प्लान बन सकता है, लेकिन सफ़र का होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आता है, बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत, जिसे हम इंग्लिश में पाइसेस कहते हैं। बुर्ज हूत वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये महीना आपके लिए कोई नई खुशखबरी आ सकती है, कोई आपकी ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हो सकता है, कोई आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या किसी मकान फ्लैट को आप ख़रीद और फ़रोख्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा मज़हबी रुझान भी आप में बढ़ेगा। जो परेशानियां अगर वक्ती तौर पे हुई थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी इन्वॉल्वमेंट, यानी एक कहते हैं ना ख़ानदान का बड़ा बन जाना, या लोग आपको बड़ा बना दें, ये भी हो सकता है। और कोई रुका हुआ काम या कोई अटका हुआ काम जो कि आपने बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी अचानक आपको ख़बर मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी वीज़े का इंतज़ार कर रहे हों या कोई डॉक्यूमेंट का इंतज़ार कर रहे हों, तो उसमें आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर रहेंगी। बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अलबत्ता एक चीज़ है, किसी करीबी दोस्त या करीबी अजीज़, उससे आपके कुछ इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, मगर जब अल्लाह ताला आपको सुनवा रहा है, यानी अल्लाह ही के हुक्म से मेरी ज़बान चल रही है ना, वरना तो मेरा तो इतना भी इख्तियार नहीं कि हाथ को यहाँ तक ले जाऊँ या ज़बान हिला दूँ, वो तो रब कर रहा है। आदमी को फालिज पड़ जाता है, अटैक पड़ जाता है। तो ये अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि रब्बुल इज़्ज़त वो हमें तौफीक देता है। और आपका बच्चों का, आपकी ज़ात के हवाले से तालीम के लिए ये आपका अच्छा महीना साबित हो सकता है बहुक्म अल्लाह। तो ख़वातीन और हज़रात, कोशिश की है कि कूज़े में दरिया बंद करूं। हर बुर्ज के हवाले से जितना टाइम होता है उस हवाले से आपको मैंने बताया चीदा चीदा। दूसरी चीज़ ये कि देखें, बात ये सब सिस्टम, ये सब चीज़ें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो, ये अल्लाह की पैदा करता है। और अगर आप ये सोच लेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कि आपको ये सितारा किसी फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने में कादिर है, तो ये आप शिर्क और कुफर की मंजिल पे चले आएंगे। मेरे प्रोफेशन के ख़िलाफ़ भी बात जाती होगी तो मैं बोलूँगा। अगर आपकी ये सोच है कि ये मेरे रब का बनाया हुआ एक इल्म है, जैसे डॉक्टर, मेडिसिन, जैसे मेट्रोलॉजिस्ट, जैसे दीगर उमूर हैं, डॉक्टर दवाई देता है ना, वो ये नहीं बोलता कि ये दवाई से आपको फ़ायदा हो सकता है, और अल्लाह चाहे तो नहीं भी हो सकता। तो ये जितनी बातें मैंने बोली, ये अगर मेरे रब का इख्तियार के तहत
اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو یہ چیزیں ہوں گی، اور رب نہ چاہے تو اٹھا کے سب پھینک دے میرا رب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مانگے بھی رب سے، جھکیں بھی رب کے آگے، کیونکہ اس سے بڑا دینے والا اور اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر یہاں پہ ہماری قوم ایک غلطی کر جاتی ہے، منہ سے تو ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن یقین کی وہ محکم مستحکم منزل نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر رب العزت بے پاں وہ دیتا ہے کہ جس کا انسان شکر تو خیر کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے مانگے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک، تمام صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے اپنا رحم کرے، تمام امامین کے صدقے آمین۔ خواتین و حضرات، ملک کے لیے جو حالات بن رہے ہیں، آج موقع نہیں ہے، ممکن ہو سکا تو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا جو حالات بن سکتے ہیں دنیا میں، اس پہ حوالے سے بولوں گا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، ہر محب وطن پاکستانی پر، پاکستانی افواج، پاکستانی ایجنسیوں پر اللہ اپنا خاص رحم و کرم کرے، کیونکہ آنے والے وقت میں مجھے ان کا بہت زیادہ کام نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ میں ہر وقت دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے جو برا چاہتے ہیں ان کو رب العزت اپنے قہر کے ساتھ انشاءاللہ مٹا دے گا، اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ ہاں ایک چیز بھول گیا کہ آپ کو مجھے اپروچ کر سکتے ہیں، میں ایک ہی جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے، وہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ کوئی بھی اس پہ، آج اتوار ہے، آج آف ہوتا ہے، منڈے 3 بجے سے شام 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جب بیرون ملک سے کوئی کرے اوورسیز سے تو وہ میرے اسسٹنٹ سے کہہ کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، آپ بھی دیکھ لیں میں بھی دیکھ لوں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے، اور میرے نام سے جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سب فیک اور فراڈ ہے۔ تو خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔